जी सर, टाइम हो गया सर, स्टार्ट कर लें क्लास। ओके ओके शफीक साहब, मैं देख रहा था स्टूडेंट्स को, मैंने कहा आप कहें तो ओके। और मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My name is Jaleel Ahmed and I am associate member of Cost and Management Accountants of Pakistan. The subject I am going to teach you is fundamentals of financial accounting, and currently I am working in Paktok, Marif International Schools and Colleges, Main Boys Campus, Lahore. I'm working over here as an examination controller of Cambridge section, and I am teaching here the accounting of O levels and A levels. My overall experience is of 11 years, and I started in 2009 my career from CFE group of colleges. Then later on, I joined another college, IBF, and then I taught in different universities. During this experience, I went to Mauritius. I have international experience over there. I used to teach ACCA courses and as well as ICAW courses. And I taught over there basically the accounting, management accounting, cost accounting, financial accounting, and then financial management. Here in ICMAP, this is our first class, and I will teach you fundamentals of financial accounting. You can raise the questions, and I will answer those questions at the end of the session during the last 10 minutes. Okay. This was my brief introduction. Now I want to tell you that you have joined Institute of Cost and Management Accountants, and this is, I think so, this is your first class. And I want to tell you first of all about the membership, that how will you become the member. First of all, you will have to clear the operational level papers that you will have to clear. Then after that, you will have to clear managerial level and strategic level, and then you will have to do some get some professional competencies after completing all courses. And these professional competencies, after getting these, and then after getting 3 years industrial exposure, you will become associate member of institute. After becoming the associate member, then you will have to get 5 years managerial experience to become the fellow member of the institute. Okay, this is the way that how you will become the member of Institute of Cost and Management Accountants. Now I would like to share with you the paper pattern. This is the paper pattern that you are going to appear most probably in Feb. Here there are two sections of this paper. Number one, there will be multiple choice questions, and these questions, there are three sections, A to C, and there would be 45 questions, and out of 45 questions, 20 questions will be of 1 mark, and 25 questions will be of 2 marks. Total marks you will get from MCQs, these will be 70 marks. The remaining paper will be of long-term questions, numerical assessment questions. In these questions, these will be long questions. There will be 3 questions, and in these three questions, every question will be of 10 marks. It means total there will be 30 marks, and you will have to attempt this 100-mark paper, and you will have to score 50% marks in this paper. This is the paper pattern.
okay, that you are going to appear in Feb. Then I would like to share the syllabus. Here, look at the part one. The part this is the part one, and the weightage of the part one is the 10%, and we will cover here the topics. These are the basically theoretical concepts, and we are going to cover some of these in this first lecture. In this part, we will discuss the accounting nature and objectives and financial accounting definition, cost accounting, management accounting, introduction to different terms. And then after this, there's another section. These are the all basic concepts. There's a part two. The weightage of part B is 50%, and we will we will start these after the completion of part one. It is not necessary that I will complete all the I will teach all the topics during initial lectures here. There are some concepts which I will teach you after completing some of the topics from part B. Okay, then the topics we are going to do here in this part B: source documents, then the second, double entry systems and ledgers, and then the trial balance, income statements and accruals and prepayments, tangible non-current assets, intangible non-current assets, and bad debts, provisions and contingencies, accounting for inventories, accounting for sales tax, accounting for payroll, bank reconciliation statement and pro forma bank reconciliation statement, and so on. There is another topic that is related to the errors. The part C, the weightage of part C is 40%. Okay. The weightage of part A is only 10%, but it doesn't mean that you will not focus on this part A. You will have to focus because you will learn the basic concepts from this area. After learning the basic concepts, you will be able to deal with the part B and then part C of the syllabus that contains all 90% of the weightage, part B and C. Okay. In part C, we will do here the sole trader accounts, company accounts, manufacturing accounts, incomplete records, and then income and expenditure account that is related to basically non-profit organizations. And then we'll do the statements of the cash flows, financial accounting ratios. Okay, this is the syllabus that we will do during till Feb. And in Feb, during the mid of the January, we will be able to complete the syllabus, and then after that, we'll do some revision, we will do some mock, and after that, you will appear in examination. Okay. Now, I would like to tell you the recommended books. Okay. You will buy Noman Malik's book. You will buy the book. This book is for AS level. Okay. I'm recommending you this book. The second book for the practice here, for the practice, I am recommending you P1, that is basically MCQ's book of Noman Malik of the same author. And the article
is 111. Article number is 111. You will purchase the same book, because if you will purchase a different book, then there will be a problem. In second here, you will purchase P1 MCQs of Noman Malik. Okay, you will purchase this book. This will be topical solved papers. Okay, this would be topical solved paper, and this is also related to AS level, or you can ask the shopkeeper to provide you A level book. This is my recommendation, but you can also use business accounting one, Frank Wood. Okay, you can buy also this book, but I would recommend you to this is a good book for practice, this Frank book. Okay, according to your syllabus, but I would recommend you to purchase Noman Malik's book. Plus ICMAP will provide you books, online books. You can use those books for clarification of the concepts, but my recommendation is for the Noman Malik AS level book and P1. These are the MCQs, solved MCQs related to the past papers. Okay, after discussing this discussion of the syllabus and the paper pattern, I would like to start with the basic concepts of accounting. What is basically accounting? Accounting is an art of recording. You can see on the screen, this is in red. This is an art of recording, classifying, and summarizing the financial transactions of an organization, of a business, or you can say of a business. What does it mean by a financial transaction? Financial transactions are those transactions which are in monetary terms, which are in monetary terms. Okay, for example, when you buy some goods, that definitely you will pay some money. It means that is a financial transaction. When you buy some building, some home or something else, like if you buy some grocery, definitely you will pay in monetary terms. That will be considered as a financial transaction. What business do? Business record those transactions, and then they classify and summarize those transactions. Sometimes they add another word after summarizing. They can say that the interpretation, interpret financial transactions. Interpretation we will do at the end, when we will do the ratios, then we will interpret the financial statements of the organization. Okay, then when we further move, then what is the recording? Well, the recording is basically preparation of journal entries, and recording, you can say recording in the books of accounts. Then the second thing is the classification. What is the classification? Classification means preparation of the ledger accounts. And then trial balance. What does it mean by trial balance? Summarization. Summarization, when you summarize the result, you prepare the trial balance and the financial statements of an organization. This is overall accounting. So the accounting is, there are three things involved in the accounting: recording of the financial transaction, classification of the financial transaction, and summarization of the financial transaction. This is called accounting.
Here is the accounting cycle. It will help you to understand the process that is used to record the financial transactions of an organization. Okay, look here. The financial transaction, first of all, there would be some financial transaction like you buy goods, or the organization buy goods, or organization sell some goods, or organization buy some building, or some business by pay some wages or salaries. These are all financial transactions. These transactions are first of all recorded, and in recording you will prepare, you will say that this is a journalization of the entries. This is called preparation of journal entries. Okay, after the preparation of journal entries, what will you do? Then you will prepare ledger accounts. Ledger accounts are prepared. When ledger accounts are prepared, after the preparation of ledger accounts, we will study these one by one. Then after the preparation of ledgers, trial balances are prepared, and then the financial statements are prepared. Sorry about the inconvenience. Okay, after the preparation of ledger accounts and trial balance, you prepare the financial statements. When you prepare the financial statements here, Sir Shafiq, can you see the screen? जी सर, कोई इशू आ रहा है सर? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा इज देयर एनी प्रॉब्लम? आपको शो हो रहा है सब कुछ? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं सर। ओके, वो मुझे शो हो रहा था, शायद मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है। ओके नहीं सर, ओके है, बिल्कुल सब कुछ ओके है सर। Okay, here in financial statements, when we prepare the financial statements, there are different financial statements. We prepare the income statement first. Income statement is prepared, and the second one we prepare statement of financial position. Then the third one is statement of changes in equity. The fourth financial statement is statement of cash flows. And the fifth one is disclosures or notes to the accounts. Okay, here when we prepare these accounts, these financial statements we will do after completion of journal entries. We will do in initial lectures journal entries, then we will prepare the ledger accounts. After the preparation of ledger accounts, we will prepare trial balance, and then we will move towards the financial statements, and then we will do one by one income statement, statement of financial position, statement of changes in equity, statement of cash flows, and disclosures. Okay, then there are different headings that there are different things that you must keep
in your mind. You will have to memorize if you want to do accounting properly. First of all, you must know what are the assets of a company. Assets are the things which are owned by a business. Okay, we are, keep in mind that we are studying here the business. We are only studying the business. When we study business here, it means that a business, there is a concept of separate business entity. You must keep this in mind. It means that the business and owner are different. Okay, assets of the business will never be considered the assets of the owner. Liabilities of the business will never be considered the liability of the owner. They are separate entities, and we are doing accounting only for the businesses, not for the person. Okay, not for the owner. Here, first of all, the things which are owned by a business, normally land, which is owned by a business, not owned by the owner. Okay, if the land is owned by some owner, it doesn't mean that that is the asset of the business. Then the building, if the building is owned by the owner, this is this will not be considered an asset. Okay, if that building is owned by the business, then that will be considered as a as an asset. Then the premises are collectively land and building. These are called building premises, and the premises are also the assets of the business. Then furniture, which is used by a business for business purposes. आप जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, आप बैंक्स में जाते हैं, तो वहां पर जो भी फर्नीचर पड़ा होता है, दैट इज द एसेट ऑफ दैट बैंक or that business. Fixtures are the things which are attached in offices, like आपके AC हो गए, आपके fans हो गए, these are called fixtures. Okay, then fixtures and fitting and computers, these are all assets. Cash in hand, the cash which is available in the business premises for business use. And cash at bank, the cash that is available that is available in the bank account of the business. Okay, then inventories are the unsold goods. Inventory is the unsold goods at the end of the period. If you are running a business, and at the end of the business there are some unsold goods, those will be known as inventory or stock. Then trade receivables are those persons to whom you have sold goods on credit. ठीक है, बिजनेस जब चीजें सेल करता है, आपने नॉर्मली रिटेलर्स देखे होंगे या आपने होलसेलर्स देखे होंगे, व्हेन दे सेल गुड्स, तो उन गुड्स को वो कैश में भी सेल करते हैं, उन गुड्स को वो क्रेडिट पे भी सेल करते हैं.
अस्सलाम वालेकुम. Okay, I'm telling you that what are the trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल की होती हैं, ठीक है. जब बिजनेस सेल करता है गुड्स तो बिजनेस नॉर्मली ये करता है कि कैश में भी सेल करता है, क्रेडिट पे भी सेल करता है, ठीक है. अगर तो क्रेडिट पे सेल हो रही हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, उनको नेम हम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है. दोज आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स. अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पर ना कुछ आप, मैंने कहा था वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर एट द एंड एड्रेस कर लूंगा, बट देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द कासिम जावेद. ही इज सेइंग दैट द व्हाट इज द बुक नेम. तो वो मैंने बुक का नेम आपको बताया था कि आपने एएस लेवल की अकाउंटिंग परचेज करनी है. आई एम राइटिंग हियर अगेन, ओके, एएस लेवल accounting by Noman Malik. Okay, this is the book name. Okay, the second I told you that कि आपने जो प्रैक्टिस बुक लेनी है, प्रैक्टिस के लिए दिस इज द MCQs book. You will purchase the book of the same author, ठीक है. आपका जो सेम ऑथर होगा उसी से आपने परचेज करनी, उसी की परचेज करनी है. दिस विल बी P1 AS level and the author is Noman Malik. Okay, and you will purchase the article number. I am again telling you that the article number, what is the article number? Article number is 111. I hope के ओके, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन इसे चेक करें इंटरनेट पे. रिमशा जाहिद शी इज आस्किंग अबाउट दिस कि कहाँ से मिलेगी. ये आपको ऑनलाइन आप गूगल पे चेक करें, ये नुमान मलिक की अवेलेबल है बुक, और ये नॉर्मली स्टूडेंट रिसोर्स से मिल जाती है. ओके, आपको यहाँ से मिल जाएगी. यू कैन सर्च दिस ऑन गूगल, ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाएगी. चलें ठीक है अहमद रज़ा. ओके, शुरू में मैं आपको उर्दू में ही बताता हूँ चीज़ें, बट लेटर ऑन विल हैव टू यूज़ दिस लैंग्वेज बिकॉज आपको पेपर जो अपीयर होना है आपने वो इंग्लिश में ही लिखना है, वहाँ पर उर्दू यूज़ नहीं होगी. बट स्टार्ट में मैं आपको उर्दू में कर देता हूँ, लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, बता भी देता हूँ उर्दू में. और हमजा सईद, सिलेबस वगैरह मैंने पहले शेयर कर दिया, मैं दोबारा आपको शेयर कर दूंगा, बाद में मैनेजमेंट को शेयर कर दूंगा, बल्कि एक ग्रुप बना के ना उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा. सीमा की बुक भी ठीक है मोहम्मद समी, बट उसमें यह है कि आप जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो बुक ले लें, और उसी की प्रैक्टिस किट भी वही ले लें, इनकी नुमान मलिक की एएस लेवल की. बिकॉज जब सारी क्लास एक डायरेक्शन में चल रही होगी तो वो फिर एक ही डायरेक्शन में आप लेंगे. ये बेसिकली ए लेवल्स का हमजा, ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज एएस लेवल. ये एडवांस सब्सिडी इसे कहते हैं, ये ए लेवल का पार्ट होता है, ठीक है, एडवांस सब्सिडी, ठीक है. लेजर अकाउंट्स अभी पढ़ाए नहीं है सीब, इसलिए आप अभी ना पूछें, ये जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी इसका चैप्टर आना है. यासिर फैज, यस यू कैन यूज ICMA बुक्स, ठीक है, लेकिन नुमान मलिक की इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस की बुक वो किट ले लें
क्योंकि हमने प्रैक्टिस जब करनी है तो उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर क्लियर करना। ओके, बाकी क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करता हूँ। अभी वन बाय वन, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लास को प्रोसीड कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन है आपका सेम, उसमें यह है कि फिजिकल थिंग्स आपने पूछा है कि एसेट्स होती हैं, तो फिजिकल भी हो सकती हैं और आपकी नॉन फिजिकल भी हो सकती हैं, इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। जब हम प्रोसीड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आती जाएंगी, आपको क्लियर होती जाएंगी। इनिशियली जितने चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस करें, मैं इसमें एडिशन करता जाऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इफ आई विल teach I will tell each and everything at this level, then you will be confused। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं, उनका बैकग्राउंड इतना मतलब उस तरह का नहीं होता कि वो सारी चीजें इकट्ठी एब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, ठीक है। आई होप सो द बुक विल बी क्लियर, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा ये शेयर कर दूंगा, ये चीजें व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। कि कौन सी बुक आपने यूज करनी है, सिलेबस भी आपको शेयर कर दूंगा, पेपर पैटर्न भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये स्लाइड्स वगैरह ये जितनी है मैं हेड ऑफिस को दे दूंगा और वो भी आपको शेयर कर देंगे और मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। दैट वुड बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ना नेक्स्ट वी जस्ट स्टडी दैट व्हाट आर द एसेट्स। एसेट्स वो चीजें हैं जो एक बिजनेस ऑन करता है मतलब उसकी ओनरशिप है, मलकियत है, ठीक है। देन देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स की टाइप्स पढ़नी है तो टू टाइप्स हैं बेसिकली। नंबर वन है आपके पास, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स एंड नंबर टू द करंट एसेट्स। आपको इसमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, आपने पहले इसमें डिफरेंस अशना आरिफ, यू एन सेइंग दैट द अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। यस, आप कह सकती हैं लैंग्वेज है, लेकिन ये आर्ट है बेसिकली ना, आप इसे एक साइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। ओके, लुक एट द टाइप ऑफ द एसेट्स। एसेट्स जो होते हैं हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स हैं एंड करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट्स हैं, आपका जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, पहले अकाउंटिंग पीरियड को समझ लें। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली नॉर्मली तो ये 1 ईयर का होता है, और होता क्या है अकाउंटिंग पीरियड में, आप क्या करते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अ पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर प्रीपेड, ठीक है। ये क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड, अ पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर प्रीपेड। अब ये जो पीरियड होता है ना, नॉर्मली आपके पास नॉर्मली ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। 1 ईयर इट मीन्स 12 मंथ्स का होता है। ये इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है, ठीक है। बट नॉर्मली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पीरियड विल बी ऑफ 1 ईयर। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 1 साल से रिलेटेड होगा। अब हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए यूज करेंगे। यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम दोज एसेट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। 12 महीने से ज्यादा के लिए आप उनको यूज करेंगे। अब उसमें कौन कौन सा होता है देखें, अगर एक बिजनेस है वो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करता है, तो उसकी बेसिक इंटेंशन ये होती है कि वो लैंड और बिल्डिंग को परमानेंट बिजनेस यूज में लेके आएगा।
अगर तो इंटेंशन ये नहीं है कि आपने परमानेंटली उसको यूज करना, अगर इंटेंशन बिजनेस की ये है कि बिजनेस ने एक एसेट परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, एंड बिल्डिंग बिजनेस चाह रहा है, बिजनेस की इंटेंशन है कि विद इन 6 मंथ्स उनको सेल कर देगा और उनसे प्रॉफिट कमाएगा, तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स नहीं होंगे, बल्कि वो आपके करंट एसेट्स में आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो फिक्सचर्स हैं, जो आपके एसी लगे हुए हैं, जो फैंस लगे हुए हैं परमानेंट बिजनेस यूज के लिए, इसी तरह आपके पास जो कंप्यूटर्स आपने रखे हुए हैं, लैपटॉप्स रखे हुए हैं, कोई व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स मींस आपके पास कोई कार्स हैं, या आपके पास कोई बस है, या कोई आपके पास वैन है जो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें ट्रक भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, जो आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये सारे आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप उसे 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए यूज करेंगे। देखें, अगर आप व्हीकल्स की इनकी बात करते हैं तो कुछ हमारे पास ना शोरूम्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो चीजें बाय करते हैं, कार्स बाय करते हैं विद इंटेंशन टू सेल देम विद इन अ ईयर, और उनको सेल करके उस पर कुछ प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं वो। तो अगर इस तरह की इंटेंशन है तो वो आप उनको क्या करेंगे, वो आपके पास नॉन करंट एसेट्स नहीं होंगे, वो करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो करंट एसेट्स हैं द एसेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड विद इन 1 ईयर। आप ये समझते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई एसेट आप विद इन 1 ईयर यूज कर लेंगे। जैसे आपके पास कैश इन हैंड पड़ी हुई है, तो ये नहीं हो सकता कि आपके पास ऑफिस में कैश पड़ी हुई है तो आप वो 2 साल 3 साल वही कैश ड्रॉ के अंदर रखे रखें, ऐसा नहीं होता। आप वो कैश यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास कैश एट बैंक होती है, वो भी आपके पास क्या है, कैश एट बैंक इज ऑल्सो करंट एसेट्स। इन्वेंट्री जो आपके पास अनसोल्ड गुड्स हैं, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड का मतलब ये होता है कि वो आपके पास पड़ी हुई हैं, आपने विद इन नेक्स्ट ईयर उनको सेल कर देना है, ठीक है। सिमिलरली आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने आपको भी बताया, यहाँ ऊपर के ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं। जब हम उनको क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमने फ्यूचर में उनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। जब हम उनसे फ्यूचर में पैसे अमाउंट रिसीव करेंगे विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, विद इन अ ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव। जैसे जब आप गुड्स सेल करेंगे तो आपके पास उस टाइम ये होगा कि आप जब गुड्स सेल करेंगे, आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप इनसे पैसे, आपने लिखा होता है कि विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी है। जैसे रिटेलर सेल करते हैं या होलसेलर सेल करते हैं या कोई बिजनेस सेल करता है, तो ऊपर लिख देता है कि विद इन 15 डेज आपने पेमेंट करनी है, विद इन 20 डेज करनी है, विद इन अ मंथ करनी है, विद इन 2 मंथ्स करनी है। तो आप ये कर रहे होते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव दोज मनी फ्रॉम दोज पीपल, दीज आर योर करंट एसेट्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है दैट इज रिलेटेड टू द लायबिलिटी। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है आपने उसको जो करना है दैट इज लायबिलिटी। अब्रार जीवानी, योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपने कहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स को कैन वी कॉल देम अकाउंट्स रिसीवेबल। देखें, जो रिसीवेबल्स होते हैं ना, बेसिकली वो 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो आपके पास ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको याद रहे कि आपके जो रिसीवेबल्स होते हैं, these are there are 2 types of receivables। एक आपके पास होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और एक आपके पास अदर रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स को आपने गुड्स सेल की होती हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने उनको क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं, आप उनसे फ्यूचर में पैसे ले लेंगे।
अदर रिसीवेबल्स में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव प्रोवाइडेड लोन, आपके बिजनेस ने किसी को लोन प्रोवाइड कर दिया है, तो उस पे जो इंटरेस्ट अर्न किया है, इंटरेस्ट इज स्टिल रिसीवेबल, ठीक है, ये आपका हो सकता है, आप अदर रिसीवेबल्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप टर्म जो है वो यूज करें जो स्टैंडर्ड यूज करता है, स्टैंडर्ड में ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ये टर्म आप यूज करें, ठीक है, ये बेटर है। अकाउंट्स रिसीवेबल सम बुक्स में यूज हो रहा है, ठीक है, आप जब रीड करेंगे तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल का यही मतलब है। काशिफ इशफाक लोधी, ठीक है, हम कोई ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप का, एज आई टोल्ड बिफोर दैट वी विल प्रिपेयर सम ग्रुप, ठीक है, उसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको नंबर दूंगा एट द एंड, तो एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, आपको मैं फिर उसमें ऐड अप कर लूंगा, या किसी एक स्टूडेंट को कह देता हूँ, वो आपका सीआर होगा एंड ही विल क्रिएट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हामिद सेज दैट एहसन रिजवान, जो स्टूडेंट रिसोर्स है ये आपको ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आपको इजीली वो बुक आपको ना ऑनलाइन भेज भी देंगे, ठीक है, पोस्ट कर देंगे आपके एड्रेस पे। और अच्छा, हामिद इज सेइंग दैट द एसेट्स दोबारा समझा दें, चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एसेट्स। ओके, लुक एट द एसेट्स। एसेट्स हमारे पास क्या है, एसेट्स हमारे पास वो चीजें होती हैं बिजनेस के पास जो बिजनेस की मलकियत होती हैं, ओनरशिप में होती हैं, ठीक है, विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस और विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं, हेल्ड बाय द बिजनेस एंड ओन्ड बाय द बिजनेस। बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि आप उनको बिजनेस को चल रन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एसेट्स आपके वो चीजें होती हैं। अब इसमें आपके पास बिजनेस के पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, जैसे आप देखें समटाइम्स आप कहीं जा रहे हो तो आपको एक कहीं प्लॉट वगैरह के ऊपर ना बोर्ड लगा नजर आता है कि ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की प्रॉपर्टी है, ये स्टेट बैंक की प्रॉपर्टी है, ये एचबीएल की प्रॉपर्टी है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, तो वो ऑनरशिप होती है, इसलिए उन्होंने लिखा होता है। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी बिल्डिंग है, प्रीमिसेस हैं, फिक्सचर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, कोई भी फिक्स चीजें हैं, या इसके अलावा कोई उनके पास कैश पड़ी हुई है, कैश के अलावा उनके पास बैंक में पैसा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में, ऑनर के बैंक अकाउंट में, आप उसको एसेट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई पीरियड एंड हो गया, उसके एंड पे कोई अनसोल्ड गुड्स पड़ी हुई हैं, जैसे आप देखें एक अगर पर्सन है वो सीमेंट का बिजनेस करता है, उसको बाय करता है और उसको सेल करता है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर उसके पास 100 बैग पड़े हुए हैं अनसोल्ड, दो दैट विल बी कंसिडर एज अ स्टॉक, ठीक है, तो वो आपका स्टॉक होगा, उसको आप कंसीडर करेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में कई दफा समझा चुका हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं इनका इसका मतलब है ये वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल की हैं। बिजनेस क्या करता है, कैश ट्रांजैक्शंस भी करता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी करता है। तो जो बिजनेस जो है कैश पे सेल नहीं कर रहा, अगर क्रेडिट पे सेल कर दिए हैं, किसी कस्टमर ने कहा है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं विद इन 15 डेज 2 मंथ 3 मंथ कर दूंगा आपको पेमेंट, तो उसको कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है। गुड्स तो सेल कर दी बुक्स में, उसे ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर करते हैं, बिकॉज बिजनेस विल रिसीव मनी फ्रॉम दैट पर्सन इन फ्यूचर, ठीक है। एसेट्स की टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास जो करंट एसेट्स होते हैं वो विद इन ईयर यूज हो जाते हैं, विद इन 12 मंथ्स यूज हो जाते हैं। जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो आपके मोर देन 1 ईयर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके पास मोर देन 1 ईयर यूज होंगे, ठीक है, दोज आर नोन एज नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में जो भी आप परमानेंट बिजनेस यूज के लिए एसेट लेते हैं वो आपके आ जाते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रीमिसेस है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग हो गए, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जो आप परमानेंट यूज के लिए
इसी तरह आपने कोई कार्स खरीद ली है, आपने कोई बस खरीद ली है, जैसे आप उसके लिए आप वैन वगैरह परचेज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए। इसी तरह अपने आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल परचेज कर ली है, जैसे आप कोई ट्रक परचेज कर लेते हैं, कोई लोडर परचेज कर लेते हैं अपनी गुड्स के मूवमेंट के लिए, दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन करंट एसेट। और द करंट एसेट्स हैं विद इन 1 ईयर यूज हो जाएंगे। उसमें हमारे पास कौन कौन से एसेट्स आते हैं? कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आता है। ये वो एसेट्स हैं जो आप विद इन अ ईयर यूज कर लेंगे, इनका बेनिफिट आप ले लेंगे। तलहा हुसैन आप कहते हैं आपका क्वेश्चन है प्रिमिसेस क्या है, तो कलेक्टिवली लैंड एंड बिल्डिंग को आप प्रिमिसेस कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। आमिना शहजाद आपका क्वेश्चन है कि बुक कब परचेज कर लें? आप एज सुन एज इसको परचेज कर लें, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा स्क्रीन पे, आपके पास वही क्वेश्चन आपके पास भी होगा और आप इजीली उसको कर लेंगे, अदरवाइज आपको बाद में वो समझने में मुश्किल होनी है। रिमशा शायद ओके, वो तो मैं साथ साथ गाइड करूंगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा खुद, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे क्लास में क्वेश्चन शो करूंगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, आप लोगों को कुछ होमवर्क में दूंगा, फिर देन यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन इफ देयर विल बी सम प्रॉब्लम, ठीक है। वो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मोहम्मद आदिल, टेंजिबल एसेट्स तो हमने अभी पढ़े नहीं है। टेंजिबल एसेट्स फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद नहीं नहीं आप मलिक मोहम्मद उस्मान, अकाउंटिंग की ही बुक लेनी है आपने, ठीक है, ये एसेट्स की कोई बुक नहीं है, अकाउंटिंग की बुक है। अच्छा चलें फिर क्वेश्चंस में आता हूँ, क्वेश्चंस की तरफ आप जरा ये देख लें। लायबिलिटीज, सेकंड कॉन्सेप्ट ये होता है कि लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज बेसिकली क्या होते हैं कि आपके पास ना दो थिंग्स विच आर ओड बाय अ बिजनेस, ठीक है। एसेट्स जो होते हैं वो ओनरशिप होती है, जो लायबिलिटीज होती हैं उसका मतलब है कि बिजनेस ने पेमेंट करनी है। बिजनेस ने क्यों पेमेंट करनी है? बिकॉज दीज आर द ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपने कोई सर्विस ली है या कोई गुड्स परचेज किए हैं जिनके अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट नहीं की, ठीक है। जैसे कि आपने बैंक लोन ले लिया, एग्जांपल्स में देखें, बैंक लोन आपने ले लिया, तो बैंक लोन जब आपने लिया तो उसके अगेंस्ट आपने क्या किया है? बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, बिकॉज बैंक को आपने फ्यूचर में पे बैक करना है, दैट इज योर लायबिलिटी। सिमिलरली आप कोई डेट्स लेते हैं अगेंस्ट द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं ना, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, या आप इनके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, इनके अगेंस्ट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अगेंस्ट आप क्या कर लेते हैं? लोन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज क्या करती हैं, उन्हें जब लोन की जरूरत पड़ती है वो बैंक में जाती हैं, बैंक से पैसा ले लेती हैं, या वो क्या करती हैं कुछ बॉन्ड्स इशू कर देती हैं, डिबेंचर्स इशू कर देती हैं। उसमें क्या होता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि इन फ्यूचर आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद, बिजनेस विल रीपे द लोन, ठीक है। तो वो जब रीपे करेगा, प्लस वो उसमें ये भी कर देता है कि बिजनेस उसमें से लोन भी रीपे करेगा प्लस इंटरेस्ट भी पे करेगा, दोनों चीजें होंगी उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। जैसे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, सिमिलरली उसके ऑपोजिट जो होते हैं ना वो ट्रेड पेबल्स होते हैं। ट्रेड पेबल्स बेसिकली वो सप्लायर्स हैं, क्रेडिट सप्लायर्स आप इन्हें कह सकते हैं, क्रेडिट सप्लायर्स, कि आपने इनसे क्रेडिट पे चीजें परचेज की हुई हैं। जब आपने क्रेडिट पे परचेज की हुई हैं तो यू विल पे देम इन फ्यूचर, ठीक है, आप उन्हें क्या करेंगे? यू विल पे देम इन फ्यूचर। तो जब आपने फ्यूचर में उनको पेमेंट करनी है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। जब तक आप उनकी पेमेंट नहीं करते दैट इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी।
देन आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये फैसिलिटी होती है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं अपने जो बिजनेसेस हैं उनको नॉर्मली, कि अगर आपके पास अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकते हैं बैंक से, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे निकलवा सकते हैं। जैसे कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1 मिलियन रुपीज थे, तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने विड्रॉ करवा लिए, सारे यूज कर लिए, तो बैंक ने उन्हें फैसिलिटी दी हुई है कि आप 50,000 एक्स्ट्रा निकलवा सकते हैं, तो वो बैंक से 50,000 एक्स्ट्रा जो है वो ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर? सैम साहब, हाँ जी, वेबसाइट एसेट होती है। आपका क्वेश्चन है वेबसाइट एसेट होती है, यस, वेबसाइट इज एन एसेट, बिकॉज आपने उसके लिए पेमेंट की हुई है और आप उसे यूज करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसे फ्यूचर में यूज करेंगे और उससे रेवेन्यूज जनरेट करेंगे, बिजनेस बेनिफिट होगा बिजनेस को। आयशा अली खान, योर क्वेश्चन इज सर मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं ये 50% हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है सईद मुस्तफ़ा, कैन यू प्लीज रिपीट द ट्रेड? हाँ जी, सईद मुस्तफ़ा, आई हैव रिपीटेड द ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे चीजें सेल की होती हैं, ठीक है, या बिजनेस जो है वो जब क्रेडिट पे गुड्स सेल करता है तो जिन लोगों को सेल की होती हैं वो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। आप इनको क्रेडिट कस्टमर भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कैश अभी नहीं पे की होती, गुड्स ले जाते हैं ये। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स मैंने अभी बताए हैं, रिमशा के डिबेंचर्स जो होते हैं वो हैं रिमशा जाहिद। डिबेंचर्स जो होते हैं ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आप लोन लेते हैं, कंपनीज लोन लेती हैं, ठीक है। इनके ऊपर लिखा होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस लोन ले रहा है और कितना उस पर इंटरेस्ट रेट देगा, बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा या रिटर्न पे करेगा। और उसके बाद बॉन्ड्स भी ऐसे ही है। अमीन वारसी, आप बॉन्ड्स का पूछ रहे हैं, तो बॉन्ड्स भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है कि आप जब ये कंपनीज इशू करती हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले लेती हैं, इसके ऊपर भी लिखा होता है कि कंपनी जो है या बिजनेस जो है वो कितने साल के लिए आपसे लोन ले रहा है, ठीक है, और कितना उस पर लोन ले रहा है और कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा, वो सारी चीजें उसमें होती हैं, लिखी होती हैं, ले लोन के लिए यूज होते हैं। हसन उज़्ज़माम, बैंक ओवरड्राफ्ट, यू आर आस्किंग अबाउट द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होती है ये फैसिलिटी होती है जो बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है नॉर्मली बिजनेसेस को, कि अगर उनके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं तो दे कैन विड्रॉ एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा भी उसमें से निकलवा सकते हैं। ये आपके पास ऑब्लिगेशन जो होती है उसका मतलब होता है कि लाइबिलिटी आपने पे करनी है, ठीक है। अलीशा नयानी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आई हैव जस्ट टोल्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट। डेट जो होता है दैट इज लोन। डेट अगेंस्ट का मतलब होता है कि आपने डेट जो है वो लिया है बॉन्ड्स इशू करके या आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। दिस इज अली हैदर क्वेश्चन, अली हैदर संगी। अच्छा, एग्जामेशन वाले हैं, जैन अली पूछ रहे हैं कि जिनको एग्जामेशन मिली है अकाउंटिंग में वो लेक्चर लेना है, तो लेक्चर ले लें तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपकी इम्प्रूवमेंट। बेशक आप एग्जाम में अपीयर हो ना हो, बट इट इज़ बेटर टू टेक द क्लास। अच्छा जी, मलिक, हाँ, ट्रेड पेबल्स पूछ रहे हैं मलिक मोहम्मद उस्मान अबाउट द ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बेसिकली
आपके क्रेडिट सप्लायर्स होते हैं, वो लोग जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स ली होती हैं। जैसे आप देखें कि आपका बिजनेस है कार्स को बाय करना और सेल करना, दिस इज योर ट्रेडिंग बिजनेस। आप जब कार्स बाय करते हैं तो अगर आप वो क्रेडिट पे ले रहे हैं तो दैट इज योर ट्रेड पेबल, कि आपने उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, ठीक है। ईशा नासिर, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, आपका क्वेश्चन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट्स आर अदर ट्रेड रिसीवेबल। नो नो, आप बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रेड रिसीवेबल के साथ मिक्स ना करें। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ये आपकी लायबिलिटी है, आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, आपके अकाउंट में पेमेंट खत्म, कैश खत्म होगी तो आपने एक्स्ट्रा फैसिलिटी यूज कर ली, तो ये आपकी बेसिकली डेट होता है, आपकी लायबिलिटी होती है। जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं, आपने उनसे पैसे रिसीव करने हैं। महद बट जो है, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशंस बेसिकली लायबिलिटीज हैं जो आपने पे करनी है फ्यूचर में, ठीक है। मोहम्मद यजदान, यस, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यू कमर्स हैं, उनको भी हमने लेके चलना है। बॉन्ड्स को मैंने रिपीट कर दिया, मोहम्मद अमीन वारसी दोबारा से अभी, ठीक है। उमर बिन इमरान पूछ रहे हैं कि सप्लाईज एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं? हाँ जी, करंट एसेट्स होते हैं सप्लाईज। उसके बाद है ये कोई वीवो Y91 है, इनका नाम तो नहीं लिखा हुआ, तो इन्होंने वीवो Y91 है, तो लेक्चर हाँ जी दोबारा मिल जाएगा आपको। लेक्चर जो है वो हेड ऑफिस वाले उस पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिबेंचर्स का रिमशा में बता चुका हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आप इशू करके ना बिजनेस जो है वो लोन लेता है। इंश्योरेंस, एहसन रिजवान कह रहे हैं इंश्योरेंस जो है वो एसेट्स होते हैं, नहीं एसेट्स नहीं होते इंश्योरेंस, ये एक्सपेंस होते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल्स का मतलब है, ये मैंने आपको अदर रिसीवेबल्स में समझाया था कि इंटरेस्ट रिसीवेबल्स जो होते हैं ये होता है कि आपने जैसे किसी को लोन दिया है तो उस लोन पे आपने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया। अच्छा, ये जो जैन अली हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट में नॉर्मली तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, लेकिन ना ये होता है कि अगर आप उस लिमिट से जो जितने टाइम लिमिट के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है उससे एक्सीड कर दें तो फिर चार्ज होता है इंटरेस्ट। उमैर अहमद सिंह, नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक ही चीज होते हैं? नहीं, लायबिलिटीज जो होती हैं ये तो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, और एसेट्स जो होते हैं वो आपके गुड्स होती हैं जो आपने ऑन की हुई हैं, जो आपकी ओनरशिप, बिजनेस की ओनरशिप है। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं, टोटली दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। साद मुस्तफा इज सेइंग दैट द बैंक ओवरड्राफ्ट लोन ही होता है। लोन का वर्ड आप नॉर्मली इसमें यूज नहीं करते, इसे लोन का मतलब होता है कि आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है किसी से ना, जैसे बैंक से लोन लिया तो वो आपने 5 साल 10 साल के लिए लिया है। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो तो कुछ पीरियड के लिए होती है, कुछ मंथ्स के लिए होती है, ठीक है। साद उसैद, आपका क्वेश्चन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होता है? नहीं, एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है, ये बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द एम्प्लॉयज। इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज एलेबोरेट द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अगेन? मोहम्मद मुकर्रम, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आपको मैंने बताया, अभी भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा, कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं इन ये कंपनीज इशू करती हैं, पब्लिक को इशू कर सकती हैं, किसी बैंक में इशू कर, किसी बैंक से उसके अगेंस्ट लोन ले सकती हैं, जिसके ऊपर ये मेंशन होता है कि कंपनी कितना लोन ले रही है, उस पर कितना इंटरेस्ट पे करेगी और कितने टाइम पीरियड के लिए ले रही है, ठीक है।
अच्छा, इनमें से ना आप लोगों में से कोई एक बंदा जो है ना वो ऐसा करे कि वो एक व्हाट्सएप अकाउंट बना ले। बल्कि ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप कौन बनाएगा, ठीक है। विल डिसाइड दिस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए अभी तक हमने बेसिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों को आपको जो जो मसले होंगे, एसेट्स में कोई मसले हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, जिनके क्वेश्चंस में एड्रेस नहीं कर सका वो दोबारा क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि मैं उनको दोबारा एड्रेस कर दूं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। लाइबिलिटीज जो हैं वो अभी हम पढ़ रहे थे कि लाइबिलिटीज जो हैं ये आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं बिजनेस की, कि बिजनेस ने किसी को पेमेंट करनी है फ्यूचर में, उसने क्यों करनी है, उसमें टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज के देयर आर टू टाइप्स, लाइक आपके एसेट्स की तरह नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। if you are expecting to pay some loan or some debt after 1 year, ठीक है, that is non current liability। जैसे नॉर्मली ये होता है कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं 5 years के लिए, 10 years के लिए, जैसे घर के लिए भी लोन ले लेते हैं आप। इसी तरह बिजनेसेस ना अपने लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे होते हैं उसके लिए जो लोन लेते हैं वो बिजनेस ले लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड द करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, ठीक है, आपने विद इन अ ईयर उनको पे कर देना है। अच्छा, विद इन अ ईयर जो पे करते हैं वो हमारे पास जैसे ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हमेशा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ही होगी। आप किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर लेते हैं तो आपने ये नहीं करना कि अब मैं 2 साल बाद पेमेंट करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ, 3 मंथ आप पेमेंट कर देते हैं। देन द बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ डेज के लिए, 45 डेज के लिए भी हो सकता है, 30 डेज के लिए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है, इनका ना नाम वगैरह तो नहीं आ रहा, इन्होंने कहा कैन यू रिपीट इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जो होता है बेसिकली मैंने बताया कि आपने किसी को लोन दे दी है, जैसे बैंक लोन्स इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, तो इंटरेस्ट जो होता है वो रिसीवेबल है। अगर कस्टमर ने अभी तक पे नहीं किया तो दैट विल बी द एसेट ऑफ द बिजनेस। आपका उमर आपका आंसर भी दे चुका हूं कि इसका बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह का ये आंसर्स हो चुके हैं, मैं आप रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस। अच्छा, ओके, अब देखें हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके बैंक लोन आएगा, डेट अगेंस्ट दैट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आएगा। आपको पेपर में वो क्वेश्चन में वो बता देगा कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। या उसके आगे क्या करता है, जैसे आपका बैंक लोन लिखा हुआ है तो उसके आगे उसने डेट मेंशन की होगी कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो ये बता देगा। तो हम जो जो प्रोसीड करते जाएंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी कि कौन सी चीज आपने कहाँ कैटेगराइज करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट है कैपिटल, थर्ड वन, ये आपने माइंड में रखना है। कैपिटल, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बिजनेस है, बिजनेस का नेम है फॉर एग्जांपल ABC, ये बिजनेस नेम है, दिस इज द बिजनेस नेम। ऑनर, ऑनर इज जुनेद, फॉर एग्जांपल जुनेद इज द ऑनर। अब ये क्या कर रहा है, इसने बिजनेस में फॉर एग्जांपल ही इन्वेस्टेड $100,000
इन द बिजनेस। अब ये जो बिजनेस में आया है, ये बिजनेस में ओनर ने पैसा दिया, दैट इज नोन एज अ कैपिटल, दैट विल बी कंसीडर एज अ कैपिटल। ओनर जब भी बिजनेस में कोई चीज लेके आएगा, बिजनेस में कैश लेके आए, बिजनेस में बिजनेस के बैंक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवा दे, या बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर ले आए अपनी पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल पैसों से, या बिजनेस के लिए कोई मोटर व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ भी परचेज कर ले और पर्सनल पैसों से परचेज करे, दैट इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। कैश भी हो सकता है, बैंक में भी डिपॉजिट हो सकता है, या बिजनेस में वो कोई और एसेट भी ला सकता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मोहम्मद ताहा, कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि नॉर्मली बिजनेस के क्योंकि पैसे उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो बिजनेस का ज़्यादा पैसे उन्होंने बैंक में रखे होते हैं, तो बैंक फैसिलिटेट करता है ताकि वो अपने कस्टमर को रिटेन कर ले। ठीक है, और कोई कंडीशंस नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, मोहम्मद मुकर्रम, आई कैन वॉलंटियर। ठीक है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई लिमिट, हाँ डेफिनेटली लिमिट होती है। आपके मोहम्मद अयाज का क्वेश्चन है, लिमिट होती है उसकी कि कितने आप अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं और कितने टाइम में आपने पे करना है। हनीफ, यू आर आस्किंग अबाउट के क्रेडिट और डेबिट का समझा दें, तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे इसको ना। ठीक है, तो क्रेडिट डेबिट जो है अगली अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए आप उसकी टेंशन ना लें कि क्रेडिट डेबिट जो है वो हम कर लिए। फिजा इज सेइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस बता दें। फिजा, जो एसेट्स होते हैं वो आपकी ओनरशिप होती है, आपके मलकियत होती है बिजनेस की। ठीक है, और जो लायबिलिटीज होती हैं वो बिजनेस ने पेमेंट करनी होती हैं, जो भी आपकी लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। जैसे आप कोई फर्नीचर परचेज करके ले आते हैं और उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट करनी है, फ्यूचर में करेंगे, दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली आपने बैंक से लोन वगैरह ले लिया, वो भी लायबिलिटी होती है। उसामा हाशमी सेइंग द लैंड रेंट लायबिलिटी होती है। लैंड जो रेंट होता है, अगर आप वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, वो एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं की हुई, टाइम गुजर चुका है, फॉर एग्जांपल पिछले साल की पेमेंट नहीं की, इन दैट केस दैट वुड बी कंसीडर एज अ लायबिलिटी। सुफियान इज सेइंग, सुफियान अली, ट्रेड रिसीवेबल पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स का डिफरेंस बता दें। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं बेसिकली ये आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल की हुई हैं, और ट्रेड पेबल्स जो होते हैं ये क्रेडिट सप्लायर्स होते हैं, इनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की होती हैं। अच्छा, मोहम्मद समी सिंह, टैक्सेशन ओड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट की चीज है ना, अगर तो वो कंपनी ने अभी टैक्स पे करना है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का टैक्स कैलकुलेट हुआ, फॉर एग्जांपल वो था 50,000, स्टिल कंपनी ने नहीं पे किया, तो दैट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो बिजनेस की लायबिलिटी होगी। बुक्स का मैंने आपको बता दिया है कि आप को ये स्टूडेंट रिसोर्स से मिल जाएंगी, या किसी भी जो ए लेवल्स ओ लेवल्स की जहाँ से बुक्स मिलती हैं वहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। आपके एरिया में शॉप्स होंगी, वहाँ से ओ लेवल्स ए लेवल्स की बुक्स जहाँ से मिलेंगी वहाँ से ये मिल जाएंगी। कासिम इज सेइंग दैट द कैपिटल और एसेट्स दोनों सेम है। नो, कैपिटल जो होता है ये ओनर जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो एसेट्स जो होते हैं, जो चीजें बिजनेस की ओनरशिप होती हैं, उनको हम कहते हैं कि वो एसेट्स हैं। ये हम जर्नल एंट्रीज जब करेंगे उसमें आपकी ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी।
अवैस इफ्तिखार सर, बुक नेम और राइटर नेम बता दें। वो मैंने बता दिया है आपके लिए, मैं इसको अवैस ये शो कर रहा हूँ, आप देख लें स्क्रीन पे, यू कैन नोट इट डाउन। ये मैंने लिखा हुआ है कि आपने कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं यहाँ से। देखें बुक मैंने बता दी है, एएस लेवल की अकाउंटिंग है, ठीक है। और इसमें बाय नुमान मलिक है, और ये आपने ये परचेज करनी है। और जो प्रैक्टिस के लिए है वो पेपर 1 है, P1 है, पेपर 1 P1, ठीक है। ये भी नुमान मलिक का, इसका आर्टिकल नंबर है 111। ये आपको मिल जाएंगी आपके एरिया में, जो भी ए लेवल्स की शॉप्स हैं वहां से आपको मिल जाएंगी। आप जंग में हैं, वीवो Y91 है कोई, ठीक है। ये आपको आपके एरिया से जंग से भी मिल जाएंगी, जहां से आपको ए लेवल की बुक मिलेंगी ना, वहां से ये मिल जाएंगी आपको, ठीक है। आप वहां से पता कर लें। अदरवाइज स्टूडेंट रिसोर्स से ऑनलाइन आप परचेज कर लें, वो आपको आपके एड्रेस पे सेंड कर देंगे। अच्छा जी, Zara Beg is saying that can you repeat the non-current liabilities? Yes, non-current liabilities are the liabilities which are expected to be paid after 1 year. जो भी liabilities जिसको आप समझते हैं कि आप 1 साल बाद वो रिपीट आप पे होंगी, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं, ठीक है। ओके, लाइबिलिटीज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स नॉर्मली तकरीबन आप कह लें कि सेम ही होते हैं। डिफरेंस जो होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे थोड़े से हायर लेवल पे, ठीक है। इस टाइम पे आप कंसीडर कर लें कि वो सिमिलर ही होते हैं। हमाद अक्सा मुश्ताक एक्सप्लेन द ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स सिंपली अक्सा ये होते हैं कि आपने जो जिन लोगों से आपने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की हुई हैं, ठीक है, उनको हम ट्रेड पेबल्स करते हैं। लेकिन वो गुड्स होती हैं, गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। एक गुड्स होती है, एक चीज़ होती है कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, जैसे आपने एक कार है, वो परमानेंट यूज़ के लिए आपने ले ली है, बिजनेस परमानेंट यूज़ के लिए, वो नॉन करंट एसेट होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि आप गुड कार परचेज कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन ये है कि विद इन अ ईयर आप उसको सेल करेंगे, आप उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगी, तो वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। गुड्स दोज आर कंसीडर्ड एज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। तो जब आप किसी से गुड्स परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए और परचेज क्रेडिट पे करते हैं, दोज आर नोन एज ट्रेड पेबल्स। मलिक का भी यही क्वेश्चन है, कैपिटल है और लायबिलिटी सेम है, ओके। होप के आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलें साथ साथ आप पूछते रहें, वो क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, कोई मसला नहीं। ओके जी, कैपिटल रिपीट करता हूँ। कैपिटल जो होता है आपके पास, जो हमारे पास जो कैपिटल है, एक स्टूडेंट है, ही सेइंग दैट रिपीट द कैपिटल। कैपिटल इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। ऑनर ने बिजनेस में जितना पैसा लगाया होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब वो चाहे वो उसमें कैश में पेमेंट करे, या वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा दे वही पैसा, या कोई और एसेट ले ले। एनी अदर एसेट का मतलब ये है कि बिजनेस के लिए उसने कार परचेज कर ली, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। इसी तरह उसने ये भी हो सकता है कि उसने बिजनेस के लिए कोई ट्रक वगैरह परचेज कर लिया है, या बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर परचेज कर लिया है, ठीक है, या कोई और चीज परचेज कर ली है बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस को वो दे रहा है, दैट इज नोन एज अ कैपिटल, ठीक है। वो जितनी भी वैल्यू का होगा वो हम वैल्यू उसकी कंसीडर कर लेते हैं, ओके। नाउ द इनकम, द फोर्थ थिंग यहाँ पर ना हेडिंग है इनकम का। इनकम
इज जैसे एक आम बंदा है तो उसकी इनकम क्या होगी, उसको वेजेस मिलेंगी जो वो अर्न करता है, या वो कोई कहीं टीचिंग वगैरह कर रहा है, वहां से उसको अर्निंग होगी, ठीक है, दैट इज नोन एज इनकम। जैसे मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ तो मुझे जो यहाँ से पे मिलेगी दैट विल बी माई इनकम, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, एक और जगह पे काम कर रहा हूँ, वहां से मुझे जो इनकम मिलेगी, जो भी सैलरी मिलेगी, दैट विल बी माई इनकम, ठीक है। इसी तरह बिजनेस जो होता है, बिजनेस ये जो मुझे इनकम मिल रही है ना, जो मुझे इनकम मिल रही है वो क्यों मिल रही है, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली बिजनेसेस क्या होते हैं, आप डिफरेंट बिजनेसेस देखें ना, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब जो बिजनेस है ना, वो बिजनेसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब बिजनेसेस में एक होता है ट्रेडर, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग जो होता है ना, वो जस्ट क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग। आप देखें, एक पर्सन है, आप सिंपली एक रिटेलर आप अगर कंसीडर कर लेते हैं छोटे लेवल पे, तो रिटेलर क्या करता है कि वो डिफरेंट डिटर्जेंट्स बाय करेगा, डिफरेंट आर्टिकल्स बाय करेगा और कस्टमर को सेल कर देगा और वहां से वो इनकम जनरेट करेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास बिजनेस होता है प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होंगे, उन्होंने बाय करते हैं, दे बाय मटेरियल्स और यू कैन से रॉ मटेरियल्स, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, सेकंड नंबर पर वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स, वो उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद एंड देन सेल, जब वो सेल करेंगे डेफिनेटली उसमें से वो अर्निंग कमाएंगे, उसमें से वो इनकम कमाएंगे, इनकम लेंगे। सिमिलरली अगर आप देखें तो आपके पास ना यहाँ पर कुछ बिजनेसेस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख लें, आपके पास यूनिवर्सिटीज हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आईसीएमएपी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। आईसीएमएपी क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली आप अगर देखें तो आपके पास ना जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आपके पास जो लॉयर्स हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, होटल्स वगैरह, दीज आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। जो सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं। जो चार्जेस वो लेते हैं दैट इज कंसिडर एज द इनकम ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जैसे आप देखें यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टूडेंट से फी लेती हैं, दैट इज कंसीडर एज इनकम। तो इनकम को हम कैसे फिर कंसीडर करेंगे, इनकम को अगर आप रीड करते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, लुक एट मनी रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। आपके पास जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ये तो आपके पास जो प्रोवाइड ये जो मैन्युफैक्चरिंग काउंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे आप होटल में जाते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप इसमें चले जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स आपका चेकअप करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज। सिमिलरली अगर आपने फॉरेन वीजा के लिए अप्लाई करना है तो इफ यू गो टू द कंसल्टेंट दे प्रोवाइड यू द सर्विसेज। तो वो तो सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, वो जो भी पैसे लेते हैं दैट इज नोन एज द इनकम ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि आप गुड्स सेल करते हैं उससे इनकम आती है, ट्यूशन फी कॉलेजेस लेते हैं, दैट इज द इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेजेस सर्विसेज दे रहे हैं, एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, ट्यूशन फी ले लेते हैं। सिमिलरली जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ऑन लोन ग्रांटेड, जैसे देखें बैंक्स होते हैं, बैंक क्या करते हैं जब लोन ग्रांट करते हैं, लोन देते हैं, तो उसके अगेंस्ट बैंक्स लोन रिसीव इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो जब वो इंटरेस्ट उस पर जनरेट करते हैं दैट इज नोन एज द इनकम,
ठीक है। सिमिलरली आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस प्रोजेक्ट से आपको कुछ प्रॉफिट आता है, कुछ आपको डिविडेंड वगैरह कुछ आ जाता है, तो दैट इज नोन एज द इनकम। ठीक है। सिमिलरली अगर एक बिजनेस है या आपकी अपनी कोई बिल्डिंग है, तो आप उसको रेंट पे प्रोवाइड कर देते हैं और उससे आप रेंट रिसीव करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनकम। ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम? यू कैन टाइप, यू कैन आस्क इन क्वेश्चन। हाँ जी उसैद, आप कह रहे हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ वो बिजनेस के लिए परचेज कर लेता है, तो वो बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ना, वो कैपिटल ही होगा बिजनेस का। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि क्योंकि बिकॉज ही इज यूजिंग, द ओनर इज यूजिंग हिज पर्सनल अकाउंट फॉर बाइंग समथिंग, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल। ठीक है। आयशा अली खान, ड्राइंग्स मेड बाय द ओनर आर आल्सो इंक्लूडेड इन कैपिटल? नो, ड्राइंग्स जो होती हैं बेसिकली वो रिडक्शन होती है कैपिटल में, उसको हम ड्राइंग्स का ही नाम देते हैं। ठीक है। वो एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कि वो एडजस्ट कैसे करनी है, उसकी एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है। कैपिटल में इंक्लूड नहीं होते, कैपिटल से डिडक्ट हो जाती हैं ड्राइंग्स। अच्छा, उसके बाद है जन्नत सलीम, शी सिंग दैट सर ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल की कंडीशंस सेम होंगी। कंडीशंस का सेम मतलब यही है कि कंडीशन लाजमी नहीं है कि अगर आपने पैसे किसी को सेल किए हैं गुड्स कस्टमर को क्रेडिट पे, तो आप उसे कहें कि 20 डेज में पेमेंट करनी है, तो आप परचेज करें तो वो भी आपको 20 डेज का क्रेडिट दे दे। वो हो सकता है आपको इससे ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हैं दोनों ही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आते हैं दोनों। ठीक है। उसके बाद उसामा हाशमी, अगर हम साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करें मींस टू से कि शेयर्स बाय करें तो शेयर्स एसेट्स होंगे। अच्छा देखें उसामा, अगर आप बिजनेस है ना उसामा हाशमी, अगर आप किसी एक बिजनेस है आपका और आपका बिजनेस के थ्रू किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके एसेट्स ही कहलाते हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी किसी और बिजनेस में, दैट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन है मोहसन अली, एसेट्स हमने कंसीडर कर लिए। एसेट्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास ये है कि एसेट्स जो हैं वो बेसिकली ये है कि आपके ऑनरशिप होती है, जो बिजनेस की ऑनरशिप में चीज़ें होती हैं, दोज आर नोन एज एसेट्स। ठीक है। उनको हम करंट और नॉन करंट में डिवाइड कर लेते हैं। करंट एसेट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, विद इन अ ईयर वो यूज हो जाते हैं, और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड होते हैं, उनसे बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए लेते हैं। ट्रेड पेएबल्स, अक्सा मुश्ताक, जो ट्रेड पेएबल्स हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। ये आपके बेसिकली क्रेडिट सप्लायर्स हैं, आप जिनसे आपने सेल करने के लिए गुड्स, आपकी इंटेंशन ये है कि आप एक गुड्स आगे सेल करेंगी और आपने किसी से परचेज कर ली। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपका बिजनेस जो है ना वो रिटेल शॉप का है और आपने किसी से शुगर बैग्स ले लिए, और शुगर बैग्स अगर आपका इंटेंशन है कि आप कस्टमर को सेल करेंगे, और लेकिन अगर आपने वो क्रेडिट पे ले लिए हैं, तो वो जो है वो आपका ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। ठीक है। और के गुड देन मोहम्मद सादिद हुसैन, रिपीट द इन्वेंट्री। अच्छा सादिद, जो इन्वेंट्री है ना उसका ये है कि ये आपके करंट एसेट्स होते हैं, ये अनसोल्ड गुड्स होती हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास बच गई, आपने इनको सेल कर देना है। क्रेडिट और इंटरेस्ट में डिफरेंस बता दें। हसन इरफान, क्रेडिट और इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट बेसिकली ये होता है कि आपने सूद, जिसे हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स इन हमारी लैंग्वेज में सूद कहते हैं। क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार पे कोई चीज ले ली है। ठीक है, दैट इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो आप जो लोन वगैरह लेते हैं उस पर आपने पेमेंट जो करनी होती है एक्स्ट्रा, दैट इज नोन एज
इंटरेस्ट। अबरार जीवानी ड्राइंग्स जो होती हैं बेसिकली अभी हमने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन ड्राइंग्स ये होती हैं कि जो ऑनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है और बाद में वो विड्रॉ कर लेता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग। ठीक है। डेफिनेशंस या मियां उमर, डेफिनेशंस बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट्स याद रखने इसमें। मोहम्मद फारूक आपका क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, मैं चेक कर लेता हूँ, आप दोबारा उसको टाइप कर दें क्वेश्चन को। आयशा मुनीर सर लाइबिलिटी का थोड़ा सा बता दें। अच्छा, लाइबिलिटीज बेसिकली आयशा मुनीर ये होती हैं कि आपने जो क्रेडिट पे चीज़ें ले ली हैं, या आपने बैंक से लोन ले लिया, या बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लिए हैं, दोज आर नोन एज लाइबिलिटीज। ठीक है। या आपने किसी से क्रेडिट पे कोई काम करवा लिया, अभी पेमेंट नहीं की, दैट इज नोन एज ए लाइबिलिटी। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन हो गया, नहीं ये कोई है एक स्टूडेंट, अपना नेम तो नहीं उन्होंने लिखा हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि एसेट्स और कैपिटल सेम होते हैं। नहीं नहीं, एसेट्स और कैपिटल सेम नहीं होते। कैपिटल जो होती है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर्स होती हैं। ठीक है। और एसेट्स जो होते हैं वो गुड्स ओन्ड बाय द बिजनेस होते हैं। मोहम्मद यजदान, गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप जो रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं, आपका पर्पस ये होता है कि हम इसे सेल करेंगे और इससे पैसा कमाएंगे। उमर बिन इमरान सेज दैट द रेवेन्यू इनकम है सर, यस रेवेन्यू इज इनकम। मैन्युफैक्चरिंग समझा दें सर हमाद। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये, मैन्युफैक्चरर का मतलब ये होता है कि जो लोग चीज़ें परचेज करते हैं और फिर उनको डिफरेंट गुड में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो कस्टमर को सेल कर सकें। ठीक है। दोज आर नोन, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप देखें, आप सिंपल पेपर परचेज करते हैं और फिर उसमें से उसकी बुक्स बना के सेल करते हैं, तो इट मीन्स यू आर मैन्युफैक्चरर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो वो लोग इन्वॉल्व हैं, इनको भी हम मैन्युफैक्चरिंग में ले सकते हैं। जो गुड्स बना रहे हैं जैसे डिटर्जेंट्स हैं, सोप वगैरह, ये सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चरर्स हैं। उमैर कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से आने वाली इनकम को भी बिजनेस इनकम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसमें यह है कि अगर बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस पर कोई प्रॉफिट आया तो वो कंसीडर होगी। ठीक है, इनकम। सुफियान इज सेइंग द प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम। तो प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस ये होता है कि इनकम जो होती है, जैसे आपने कोई चीज़ सेल कर दी, फॉर एग्जांपल आपने चीज़ सेल की 100 की और वो आपने परचेज की थी 80 की, तो डिफरेंस जो होगा 100 माइनस 80, डिफरेंस प्रॉफिट होगा। लेकिन जो आपकी जो इनकम है वो आप 100 लिखेंगे कि आपको कस्टमर से इनकम 100 हुई है, उसमें से आप कॉस्ट निकालेंगे, फिर आपके पास प्रॉफिट आएगा। कासिम, बुक्स जो हैं आपको आईसीएमए भी प्रोवाइड करेगा, इनकी भी बुक्स हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। गैलेक्सी J5 हैं कोई, इन्होंने लिखा हुआ है कि सर इनकम कैपिटल अकाउंट में आती है। नो, अभी हम इनकम की ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, आप जैसे इसको समझें क्या क्या चीज़ें इनकम में आती हैं, फिर जब हम इसके आगे पढ़ते जाएंगे फर्दर तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ट्रीट कहाँ करना है। ठीक है। अलीशा यानी से गुडविल भी इनकम होती है? नहीं, गुडविल आपका एसेट होता है अलीशा, गुडविल आपका नॉन करंट एसेट होता है, इंटेंजिबल। हाँ जी, उमैर बिन इमरान, यू कैन से दिस दैट द रेवेन्यू को आप इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है। और वो पर्सनल लोन है। देखें सुफियान अली, आप कहते हैं बैंक एम्प्लॉय बैंक से जो लोन ले लेते हैं वो तो पर्सनल लोन हुआ ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू थिंग्स रिलेटेड टू द पर्सन। ठीक है। हम बिजनेस से रिलेटेड पढ़ेंगे, होगा वो भी लोन, लेकिन वो इंडिविजुअल के लिए लोन होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है, फिनिश गुड्स जो होती हैं, फिनिश गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो आप फाइनल कस्टमर को सेल करते हैं। जैसे आप टी बैग्स लेने चले जाएं, वो फिनिश गुड्स हैं।
कार लेने चले जाएं वो फिनिश गुड्स है, मोटर बाइक लेने चले जाएं दैट इज अ फिनिश गुड्स। सिमिलरली आप मैट्रेस वगैरह कोई चीज लेने जाएं वो फिनिश गुड्स है जो कस्टमर यूज कर सकता है अपने लिए। तला हसन हुसैन, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप कौन क्रिएट कर रहा है, वो बताता हूँ आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में ये लेक्चर जो है वो कर लेंगे इसको शेयर, ठीक है। मलिक मोहम्मद उस्मान, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट नॉन करंट एसेट, टाइम का डिफरेंस होता है। जो करंट एसेट्स होते हैं वो विद इन अ ईयर यूज हो जाते हैं और नॉन करंट एसेट्स फॉर मोर देन 1 ईयर यूज होते हैं। जो मोहम्मद समी, जो हाउस रेंट है, अगर आपका बिजनेस जो है वो किसी घर में आप बिजनेस है ऑफिस बनाया हुआ है और उसका जो रेंट दे रहे हैं दैट विल बी एक्सपेंस। जुनैरा अनवर, हाँ बुक्स मिल जाएंगी वहाँ से, आपको लाइब्रेरी से भी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें ये है कि जो मैंने बुक रेकमेंड की है ये बुक नहीं उधर होगी, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है। बुक और केट्रियो मैंने रेकमेंड की है नोमान मलिक की, इसलिए ये मैं आपको रेकमेंड की है। बाकी आप किसी और बुक से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप लाइब्रेरी यूज़ कर लें। फजर फयाज, कॉन्सेप्ट्स को आपने माइंड में रखना है, डेफिनेशंस को आपने याद रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि पेपर में आप उसको आंसर कर सकें। ट्रेड पेएबल से नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ठीक है मोहम्मद तला, नॉर्मली उनसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप कंडीशन सेल करते हुए लगा देते हैं ना कि आपको अगर आप इतने दिन बाद फॉर एग्जांपल 30 डेज बाद अगर पेमेंट करेंगे तो फिर हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो हो सकता है। जैन अली, यस यू कैन कॉल फिक्स एसेट्स, ठीक है, उनको फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स को। अशना आरिफ, यस नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। हाँ जी, उसामा हाशमी, जो आप किसी को लोन देते हैं वो आपका एसेट होता है, ठीक है, जो आपको किसी को प्रोवाइड करते हैं। मोहम्मद समी, हाउस रेंट, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मोहम्मद फारूक, स्टेपलर मशीन जो अगर तो वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी है तो फिर तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एसेट, अदरवाइज वो आपकी स्टेशनरी में आती है जो जिसको हम आगे एक्सपेंस में डाल देते हैं। लोन ग्रांटेड, मियाँ उमर, लोन ग्रांटेड जो होता है ना वो आपका एसेट होता है जो आपने किसी को दिया होता है। अक्सा मुश्ताक, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है उसका मतलब ये है कि ऑनर इनिशियली फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्ट करता है और बाद में बिजनेस को फिर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो फिर 20,000 अगर एक्स्ट्रा देता है तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। गुडविल एसेट होता है, इनकम नहीं होती, ठीक है। अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस तकरीबन एड्रेस हो चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला हुआ तो वो फिर उसमें कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पर, आप उसमें कर लें। ठीक है, 7373, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 0312430737, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर वो बाकी आप उधर पूछ लें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, ओके। अच्छा, ओके, अभी आज की क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। यस सर एक मिनट, मैं इनको ना जो लेक्चर का पूछ रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, जो जी लेक्चर जी पूछ रहे कर हैं दें, मैं उसको सर थोड़ा सा उनको शेयर करके उनको बता देता हूँ। यस 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 यू कैन। ये स्टूडेंट आप आईसीएमपी वर्ल्ड पे अब लॉगिन होंगे, ठीक है।
ये मैं दोबारा आपके सामने लॉगिन करवा के दिखा देता हूँ। ये आप लॉगिन होंगे अपने अपने जो आपको नंबर मिला है आपका ISB या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है जिससे आप क्लास के लिए लॉगिन हुए हैं, इसमें आपने अपना नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन करना है जैसे आप क्लास के लिए लॉगिन करते हैं। ठीक है, 200 जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके ऊपर देखिएगा आपके पास सब्जेक्ट लिखा हुआ, आगे व्यू लिखा हुआ है। व्यू में आप जैसे क्लिक करेंगे इसमें आपके इन टीचर के भी और जो पहले टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर, सबके लेक्चर पढ़े हुए होंगे यहाँ पे। जैसे आप व्यू करेंगे सारे लेक्चर वहाँ पे पढ़े हैं, आप उसको व्यू करेंगे तो आपके पास लेक्चर खुल जाएगा और लेक्चर आप प्ले करके आप उसको पूरा जो है ना वो सुन सकते हैं, रिपीट सुन सकते हैं, आपके पोर्टल पे ही पड़ा हुआ है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है A is equals to L plus C। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पोर्टल पे ही है और आपके पोर्टल पे जैसे डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपके सामने सब्जेक्ट लिखे आ रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर लिखा आ रहा है और नीचे सब्जेक्ट लिखे आ रहे हैं। वहाँ पे व्यू में जाएंगे तो आपके सब सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर व्यू हो जाएंगे। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।